parched lands, dead cattle. Is this an act of God or neglect by man? The Sardar Sarovar Narmada Dam, harnessing our precious water resources, giving hope to millions. Say yes to Narmada. जो बरगी बांध जो बंधा गया, इस कारण हम लोगों को भागना पड़ा वहाँ। थोड़ा बहुत मुआवजा मिला हम लोगों को। समझ लो जैसे बामन को दान दक्षिणा देते हैं, इस टाइप का मिला। तो जबरदस्त मन भगाया गया वहाँ से। साल ऐसे खोजते मजदूर अपना काम ढूंढते एक दूसरे के सहारा से हम लोग भागकर जगह पर पहुँच गए। कुछ दिन ईटा गारा काम किए था, कुछ दिन धक्का लगाए ठेले पर, कुछ दिन मजदूरी किए। उसके बाद थोड़ा साइकिल चलाने आता था। ऐसे हम लोग रिक्शे सीख गए। अपना रोजी रोटी इसमें गरीबी गुजारा प्रस्त करते हैं। पानी जैसे भरने लगा था, हमको जबरदस्त भरने पड़ा कर वहाँ। हम लोग अभी करके हम लोग माने पानी पर खड़े रहे। जब डूबने लगे, हमारे बाल के ऊपर हमारा मकान डूबने लगा, तो वहाँ से हमको भागना पड़ा। समझ लो पानी ने हमको जबरदस्त भगाया। गाँव की जमीन जंगल होते सिर्फ झाड़ खाने से पट्टी पहाड़ दिखा रहा हूँ, जितने पट्टी से रहे जंगल वो खाली सब खेत लाल जुड़े हैं। जो गाँव बस जो मत दूध है, जो 12 दिखा आम को झाड़ जुड़ी ही को झाड़। कंठ से निकली हो रेवा, जन जन करी रहे तारी सेवा। Amarkantak, the birthplace of Narmada, described in mythology as the daughter of Shiva. Cascading into numerous waterfalls, she journeys on the long westward course to meet her lover, Dudasaman, the Arabian Sea, 1300 kilometers away. The Narmada Valley itself separates the two great mountain ranges of central India, the Satpuras and the Vindhyas. Several millennia ago, since this river first charted this course, it has always flowed unbound and unfettered through deep gorges and wide plains. One of the 7 river goddesses of India, Narmada is regarded as the holiest. For the tribal population of this region, she is Ai, the mother of all creation. According to popular belief, a curse will fall on anyone who tries to stop the surge of the river Narmada. Since the late 1970s, Narmada has become the scene of one of the most ambitious river valley development projects in the world. More than 3,000 dams will be built in the valley for irrigation and hydropower. 30 of these will be large dams. As a consequence of these gigantic projects, more than 15 million people will be uprooted and marginalized. Bargi is the first dam built on the Narmada.
It is located 40 kilometers upstream from the town of Jabalpur in Madhya Pradesh. Started in the 1970s, Bargi Dam is part of the series of super dams conceived in the early decades of India's independence to contribute to a vision of modern India. The implications of this vision for the common masses were to unfold over these 50 years. The Bargi Dam wall, which is 69 meters high and more than 5 kilometers long, was completed in 1989. The reservoir submerged an area of over 300 square kilometers, an area equal to half the city of Bombay. As a result of this submergence, more than 100,000 people lost their homes and livelihoods. A majority of these people belong to the Gond tribe, once a powerful ruling community of central India. Ironically, the name of their 16th century queen has been appropriated by the government to name the Bargi Dam as Rani Avanti Bai Sagar Dam. जिस वक्त से ये बांध बंधा है उस वक्त से हम लोगों की सारी आजादी खत्म हुई। सरकार की नीति है कि एक देश को कहते हैं आजाद कर दिया, एक देश साला कंगाल हो गया। इधर इतनी बड़ी सत्यानाशी क्या है कि साला का कहते हैं आधा आदमी मरने, अरे कोई जाता मजदूरी करने ट्रक भरने जाते हैं तो एक दो कभी सुनो तो वहाँ मर गए, किसी का पैर टूट गया, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई भूखा सो रहा है। तो अब बताइए ये जिंदगी यहाँ पर क्या विकास? रोजगार यहाँ 12 मासी था। यहाँ कैसा रहा था, आज मट्टी भी ले जाते थे यहाँ बिक जाती, चारों भी ले जाते बिक जाती है, लकड़ी ले जाते बिक जाती। धंधा तो जो छोटे आदमी जो मजदूर है बहुत मस्त रहता था यहाँ। हाँ यहाँ हाँ बहुत थामा। तो आज हम आपके पास जाते कि भाई हमको ऐसा चीज चाहिए तो फट तुम दे देते कि भाई अपना गाँव कहा जाए, मानता आदमी आजकल इससे हम काम करा लेंगे। ऐसे ऐसे चलते रहे साहब। बीजासेन में तो यहाँ सी बाजार लगे थे, 24 घंटा बाजार है। 8 रोज की 8 रोज हाँ, बाजार करते बीजासेन की। हाँ, ये तो समझता आती हमें बाजार करे सब चीज ले ले। बीजासेन गांव में गुलजार है बसे नदी के तीर और शिव शंकर की पूजा करत है माई नर्मदा के तीर। ऐसा गांव था बीजासेन जो कि आज ये हालते हैं शासन ने और एरिगेशन वाले ने बर्बाद कर दिए। देखे कि Bijasen, once a bustling center of rural trade, was one of the first few fortunate villages to whom the government granted land titles for alternative housing sites. The entire village was shifted on the periphery of the reservoir. For 8 years, the people of Bijasen lived in their new houses. But in 1990, the resettled Bijasen village drowned in the dam waters. कलेक्टर जो हती पहले भाई अवस्थाना उसने पुनर्वास देकर बसाकर वो पट्टा बांट गई। और जब जो स्कूल यहाँ पर बने हैं अपने हाथ से ज्ञाति पट की तो नीक होते गई थी, 5 ज्ञाति पट की थी स्कूल जब कि यहाँ से पानी नहीं भरेगा और जो पक्का पुनर्वास हो गई और जो पट्टा में तुमको बांट दे रही हूँ। पुनर्वास के अंतर्गत भाई सन 90 में पूरे मकान डूब दिए इसने। अब यदि फसल डूब गई, मकान डूब गए, बेमकान घर दूर हो गए, आदमी तम्बू तान दिन काटे 4 महीना, किसी को व्यवस्था नहीं रहने के लिए, छुरियां बकरियां मवेशी मार गई। When work on the Bargi Dam started, 101 villages were officially slated for submergence. But in 1989, when the reservoir was filled for the first time, with no prior warning, an additional 39 villages were drowned. Several other villages, which had been relocated on the periphery of the reservoir, were submerged as well. मैं बरगी बांध जूट क्षेत्र का निवासी हूँ। मेरा नाम रशीद शाह है। मैंने इसके बाबत में एक कविता बनाई है, वो कविता मैं सुना रहा हूँ।
ये भारत सरकार ने जो भारी धोखा कर दो, ये भारत सरकार ने जो भारी धोखा कर दो, और बहुत कमी से दिया मुआवजा गली गली को कर दो, बहुत कमी से दिया मुआवजा गली गली को कर दो, और जो न मुआवजा अभी लेगा धमकी उनको भर दो, रहने बसने पुनर्वास दो और सुविधा कर दो, पढ़ने को स्कूल बना दो और पीने को नल दो, 4 माह हम पियन न पाए 8 माह के भर दो, ये भारत सरकार ने जो भारी धोखा कर दो, अंधा लंगड़ा बनो रसीदा अब जीने का मजा लो, ये भारत सरकार में न रह गो कोई हवालो। पहिला मेरी तबीयत खराब है, पैसे में तो दवाई कराएं, पैसे भी नहीं निकाल में दवाई कराएं, न खाते हैं न पीते हैं, दले रहते हैं। कितने बच्चे तुम्हारे? 2 बच्चे, 1 लड़की और 1 लड़का। कितने बड़े हैं? जो लड़की बैठी है, जो है 1 लड़का, जो लड़का कोई व्यवस्था ही नहीं है उनकी। अब 2 बच्चे हैं, उनको पढ़ा सके न लिखा सके, कोई चीज ही नहीं है। क्या स्कूल नहीं है? स्कूल है तो जो लगता ही नहीं है, भर जाता पानी भर जाता है, खुद के रहने के साधन नहीं है, मास्टर कहाँ बैठा है। तो उधर स्कूल था? हाँ, पुरानी बक्सी जब स्कूल था। In 1992, Bargi Dam officials decide to estimate and mark the submergence at the full reservoir level. Armed with engineers and measurement devices, the authorities opt for a rather simple method. They decide to just let the waters rise and fix the markers where the waters reach their maximum level. This simply marks the full reservoir level. In this letter of October 1992, the chief engineer directs his junior engineers. It is directed that now, since the water is filled up to the FRL, it's the right time to mark permanent markers in all the villages along the periphery of the reservoir. This will save huge expenditure to undertake survey at site. This natural water level is actual submergence area at FRL. With best wishes, yours sincerely, B.B. Ghosh, Chief Engineer, Rani Avantibai Sagar Project. When the reservoir was finally filled, an additional 22 villages were affected. These were over and above the 140 villages submerged earlier. For many of these villages, this was the 3rd time they faced submergence. Inside the Bargi Dam office, on this notice board, the original estimates are still visible. By merely sticking a piece of paper, the government officials seem to have fulfilled their responsibility of admitting the unplanned submergence of a total of 61 more villages. Sarrap is one of the villages not slated for submergence. 3 साल भरा होगा, हमको कुछ नहीं मिलता है और कुछ नहीं सरकार की है। क्या करें? पानी चारों तरफ से आ जाता है। ये कैसे घुसता है? अरे यहाँ यही जगह में 100 साल पानी नहीं आ रहा है, सब लिखित बोल रहा था भाई साहब कि मेरे से लिखित ले लीजिए कि 100 साल पानी यहाँ नहीं पहुँचे। वो तो हम अच्छे रहो उस टाइम पे, क्या बताओ, लिखित ले लेते तो राय साहब फिर क्या कहते। कलेक्टर साहब है, उसकी 3 साल की उसकी नौकरी रुक जाएगी, उनकी कैसी व्यवस्था बने, हमारी 3 साल की फसल डूब गई। हमें ठीक है, दतून के सब के ललाते हैं, देखो कहाँ जाएं, अभी तभी जल भरो, ये अभी छिके है, ये अभी छिके है, अब कहाँ जाएं? हमारे मवेशी जैसे पैर के तो मर जाते, सामने भी पानी हमारे घर की और पीछे भी पानी, और अब बीच में हम हैं, हमारे बाल बच्चे तनक और गए तो डूब गए, तो फिर होता ही हो गए। अरे भाग रहे हैं, नहीं पड़े तो जबल को भाग रहे हैं, खेला पड़ता है तो कोई नहीं मर जाए, कुलियाला हो जाए। अरे भारत की सरकार ने जो धोखाधड़ी कर दो, हमारे मित्र 162
गाँव डुबोदय 162 गाँव डुबोदय 162 गाँव डुबोदय 162 गाँव डुबोदय बांध बना के धर दो भारत की सरकार ने जो धोखाबारी कर दो भारत की सरकार ने जो धोखाबारी कर दो हमारे पहले तो दे खूब आश्वासन 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 बाद में ठेंगा बता दो हमारे भारत की सरकार ने जो धोखाबारी कर दो अरे मंदिर मस्जिद सभी डुबोदय मंदिर मस्जिद सभी डुबोदय मंदिर मस्जिद सभी डुबोदय मंदिर मस्जिद सभी डुबोदय जंगल को भी डुबा दो हमारे भारत One of the oldest and most sacred rituals on the Narmada is the parikrama, the ritual journey by foot all the way from the source of the Narmada to the sea and back along the other bank. The parikrama is a pilgrimage, must be done at least once in a lifetime. For generations, the pilgrims have found support and shelter in the villages and the chain of temples by the riverside. भैया कहाँ कहाँ से आते को जाने जाठक से जाए और बाठक से लौट के ऐसे जाए और अब देखन के भी नहीं मिलती भरा हुआ हो जब दादा परकम में बंद हो गई क्या गाड़ी मोटर से करने लगी दादा को जाने मुझसे कोई से मतलब नहीं रहे न खाना से मतलब न कोई दुनिया से मतलब न भगवान की भजन से नर्मदा से मतलब चाहे खर्रा गिरे चाहे पानी बरसे भी नर्मदा से कहीं नहीं जाए और धन्य भगवान नर्मदा की ऐसी ऐसी मेहमा बंदी ऐसे साधु की दर्शन सुना जैसे अभावी हो गए हमको ये साधु की दर्शन नहीं होता मुलाकात नहीं हो कि कैसे परकमवासी होते A handful of relocation sites were built to settle the ousties of the Bargi Dam. Jamunia, described by officials as a model village, is one of these sites. Attractive promises were made to tempt many of the uprooted to come to Jamunia. This model village had only house plots to offer. There was no provision for agricultural land or any other means of livelihood. 7-8 साल हो गए सलैया के यहाँ हमें कच्छ नहीं चाहिए हम बस भाग रहे इधर उधर बनी मंजूरी में। यहाँ आने के पहले क्या बताया आप लोगों को? आपको लोन मिलेगी, किराने की है, कपड़ा की है, भैंस है, जी मिलेंगी और तुम्हारे से 2.5 हेक्टेयर जमीन की है गाय, 2.5 हेक्टेयर एक परिवार के नाम पर रहेगा और बिजली बत्ती सब रहेगा आपको फ्री है बिल्कुल। रोड और रोड सब जी तुम्हारे स्कूल पंचायत भवन है, अस्पताल है, 2 अस्पताल भी बने हैं मगर अभी तक कोई कर्मचारी नहीं आए। 7 साल बीत गई थे बस। आपकी जमीन लेने के पहले बताया नहीं बांध क्यों बन रहा? कुछ नहीं बताए, सिर्फ कहने में भाई की जगह में हमारा कब्जा है आप पैसे लीजिए और यहाँ से जाइए, पट्टा बही पट्टा सब छीन ले क्या दादा। और ये जैसे आज मिल रही है बोझ की 50,000 ही का और हमको वहाँ मिली है वही 2,000 1,500 2,500 ही का बस। तो पैसा क्या किए जो आप लोगों को मुआवजा? अरे काम मिले वही तो हमने बताया जैसे 10 एकड़ जमीन है 10 एकड़ की हमको कितनी मिली भूस की 12,000 मिले नहीं मिली 12,000 तो मिली। अब बताओ 12,000 में आज हमको 1 एकड़ जगह भी नहीं मिले थे। अब उते से उठे भटरन में बसाए भटरन से कहे कि अभी तो तुम तो चलो अब उते से उते आओ कहे तो रुपये खत्म कर ले बे गुजारो पे जभाजी मेरी और जय तो हो चावल वासी झ रोटी के खंडा और ढाकर ढाकर पेज पीले चोली हुए हैं ठंडा कर ले बे गुजारा पे जभाजी में कर रहा हूँ बेचारे अब गरीब कहते करे न धंधा पड़े न फंदा घर घर नाचे मूसर चंदा। तो कोई अच्छा भी बोल रहा हो कोई बुढ़ो भी बोल रहा हो बरेला के ए दादा
कहो लकड़ी लाई, कोई कहते लकड़ी वाले खड़े शब्द से। ठीक है भाई, अब हमारा मुहूर्त है सुन देखो, जो किनारी खपरा चिकौनी रहती नहीं, इतनी इतनी पतली वाली लंबी वाली, वे हम अपने लाए थे निस्तार के लिए। अच्छा। उनको हम कहे थे पकड़ लिया गांव के अंदर में। और कह लगे दूसरे दिन कहने चलो चलो उदयपुर से चलो मंगला गया। कौन आया था? जंगल के अधिकारी हमारे वाला कीर्तन की मेड़ में सगोना रहे, साजा रहे, धवा रहे गाय, उनकी आज तक नहीं मिली भूसी बाजा। नहीं, और डूब गए और सूख गए, कटवा कर लेगा सरकार, ले गए। 20 तारीख के लिए कहाँ से लकड़ी लो? कहाँ से ले आए? जब हम आज आगे से नहीं लाया तो आज काले आज 50 साल की उम्र हो गई। सनातन धर्म से जो राजनीति है निस्तारी चीज भी लगती है, हर के बकर के घर के मरम्मत के हर चीज के, हम काय के नाने मोहल्ले में, हम काय के नाने मोहल्ले में लकड़ी। गांव ही कहलाते साहब, शहर कहलाता है। अपना देश राजा होता है, पराया देश चुका होता है। देश का जैसा हमको सुख नहीं मिल रहा है। दुख सुनाते सुनाते तो मर जाएंगे साहब, कोई नहीं सुनेगा। जानने वाले जानते हैं, अनजान आदमी अरे धक्का प्लेट है, कल में धक्का लगा ठेलेगा 2 रुपये मिलेगा, ऐसा समझते हैं। लेकिन हमारी अनुमति का उनको इंतकाम मालूम नहीं है कि जो लोग थे कैसे, कहाँ थे, कैसे थे, क्या करते थे, इतना हिसाब उनको मालूम नहीं है साहब। लेकिन आज हम लोग रोज छाप हो गए, हमारा कोई कदर नहीं है साहब, कोई इज्जत नहीं करता हमारा। गरीब जनता कहीं भी धक्का मार दिए चला गए, चले यहाँ से भागो। कोई पैसा पार्टी वाला हो, कोई दमसम वाला हो तो लड़े सरकार के साथ, वो भी वैसे ही मेरा भाई, मैं भी वैसे ही, बाजू वाला भी, पड़ोस वाला भी वैसे, सभी बराबर। आज ये बना है झोपड़ी, कोई रोटी खा रहा है तो दाल तो कोई तेज पी रहा है। जो हालत हम लोगों पर गुजर रहा है, इस टाइप की हमारी दुनिया बन गई। तो ये तो जहाँ आप लोग घर बनाए हैं, ये तो जमीन पे लिखा हुआ है, वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है जी, इस पे लिखा हुआ है कि आप कुछ कराएंगे, बहुत लाख रुपए खर्चा करेंगे। हाँ, कि तुमको किसी न किसी दिन यहाँ से उठना पड़ेगा, ये सबको उठना पड़ेगा, सबको उठना पड़ेगा साहब। पहले बोल दिया गया, नोटिस अभी मिला नहीं है। नोटिस बोल रहे थे कि नोटिस दिया जाएगा आप लोगों को, आपको पहले भी कहा गया है और अभी भी कह रहे हैं कि 2-4 साहब यहाँ पर आए थे, बोले साहब कि मजदूर जगह है, आप लोग बना लिए टपरिया, कोई बात नहीं, आप रह सकते हैं, जिस दिन वक्त आएगा आपको यहाँ से भागना पड़ेगा। तो समझ लिया 2 सहारा हैं, कोई धक्का मारता है तो तालाब में बिल्कुल जाके अंदर ही, तालाब के अंदर। रानी काल ये सरकारी मजदूर की जमीन है, करीब उसका 100 एकड़ का प्लॉट है। ये यहाँ पे स्टेडियम हमारे पास एक है, लेकिन वो इतनी कैपेसिटी का नहीं है। तो हम लोग एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्पोर्ट्स के लिए स्टेडियम बनाना चाहते हैं, इसलिए वो जगह का चयन किया गया है। कोई लोगों ने जिन्होंने अपनी जमीन जितनी टूट गई, एक राष्ट्रीय विकास की योजना के तहत, और वो लोग आके जबलपुर शहर में इस्लाम में रह रहे हैं। ऐसी कोई शिकायत नहीं है हमारे पास कि वहाँ के विस्थापित लोग आकर के रह रहे हैं। उनको तो सरकार ने बाकायदा मुआवजा दिया है, उनके लिए विस्थापन के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए, उनकी शहर बसाए गए उनके लिए रहने के लिए। ये कहना गलत है कि वहाँ के लोग भाग करके यहाँ आके रह रहे हैं। मेरे पास तो आज तक किसी ने शिकायत नहीं की कि हम बरगी बांध के विस्थापित हैं और हमको ये सुविधा नहीं मिल रही है वगैरह वगैरह। ये पहली बार सुन रहा हूँ कि यहाँ पर बरगी बांध के विस्थापित लोग सेटल हुए हैं। The Bargi Dam wiped out almost all sources of livelihood, except fishing, which has been a way of life for countless generations. Overnight, it was declared illegal. The State Fisheries Development Board claimed monopoly fishing rights in the Bargi Reservoir and later handed it over to private contractors.
The fisher folk, who once freely harvested these waters, were forced to become contract labor. मछुआरे हम लोग, जब हम लोगों की बिल्कुल छूट थी, हम कहीं भी मच्छी बेचते तो हमारे लिए कोई अधिकार नहीं था कि हमारी मच्छी कोई पकड़ता था, कोई नहीं पकड़ा, हमको जहाँ लगता था तो बेचते थे। जब पहले छूट आती, जब 10 रुपया 15 रुपया किलो मच्छी बेचते थे, उसके बाद निगम आ गया, निगम से लग गए थे ठेकेदार, और आज जो ठेकेदारी होने से 5 रुपया किलो मच्छी मरवा रहा है। तो तक खावे का मोहताज, हमारा पेट नहीं पल रहा, 5 रुपये मच्छी भी नहीं मिल रही। वो उस पार गाड़ा घाट पर टैंक लगा, वहाँ जीव आती है मच्छी के लिए, खेत के लिए मच्छी मतलब वर्ग पालती बाहर नहीं बेच सकती, उसका भी कानून बनाया। खावे के भी मजबूरन कारण लोगों से बगलान बाहर के पहलवान गुंडा लोग लान दिखाते हैं, झक्का पालते हैं कि मतलब मछुआरे डराए कर, बंदूक लेके आए, बस्ती में घूमे, बोलते हैं कौन लोग, ठेकेदार लोग गुंडा लोग जो आते हैं, वो बोलते हैं कि जो पानी हमारा है तुम्हारा नहीं, जो शासन हमारी, ऐसे बोलते हैं हमारी जजा, और आज हमें जो पानी क्या भाव खरीदते हैं? और बिकता कितना है, कैसे भाव बिकता है? 700 रुपये रोज की गाड़ी खड़ी है, पहलवान खेत है, तनख्वाह है, पहलवान क्या हम मछली गोरने वाले देख रेख करते हैं, मछली चोरी नहीं जाती। चोरी मतलब पानी में से कोई खरीद के न ले जाओ, कोई खरीद के नहीं ले जाए। अब इसका जो हम लोग पैसा दिए हैं, इसको देख रेख तो करना ही पड़ेगा। कितने पैसा दिए? 70 लाख लोगों की ड्यूटी लगती, मतलब किसका है ये ठेका? सुरेंद्र कुमार के ठेका है, पूरा कंट्री लेकर, भारे लेकर, पानी खरीद लो, डैम खरीद लो उनने, तो भाई अब इस दबाव बस को धंधा तो है ही, बहुत मार पीट करत खमरिया में तो खत्म ही कर दे। एक जन के चीरी में थे मारे हैं, उनकी भी पसली अच्छी टूट गई है कहते। एक मलारा के प्रधान के वो भी बहुत अधिक पिटाई पीटे है, महेश नाम का को। तो ऐसी बहुत सी परेशानी भैया जी, जब से जी डैम भरो, जब से। कितने लोग आते हैं यहाँ लेने के लिए? लोग बहुत आते हैं यहाँ, तो हमारे सभी आदमी यहाँ ना जाना सभी लगे हुए, पूरे आदमी भरे हुए, 15 तक आदमी बैठे हुए, घर की कॉलोनी में आदमी बैठे हुए। कितने आदमी होंगे, कितने कर्मचारी होंगे? 100-150 आदमी। पिटाई विटाई भी कर देते हो? हाँ, तो वो तो जरूरी है। जमीन नहीं है तो हमारी जमीन वापस कर दीजिए, हम अपनी जमीन चले जाए, ज्यादा हो जो तुम ज्यादा हो हमें, वो तो हमसे ले लीजिए, और हमारी जायदाद हमें दे, हमारी जायदाद हमें दे दीजिए, जकल ले हम कोई चीज खिला लाते रहे कि हमारे घर लगी थी, भी हमारे घर लगी थी, आम हमारे घर लगी थी, मन चाही तो साग सब्जी खाते रहे। मुआवजा जब ही लौटे हैं हम, जब से पानी में डूबा हुआ हमारी फसल दे दी। हाँ। हमारी जमीन डूबी है अब पानी में, अब हम अभी तो जी रहे हैं क्षति, तो फसल हमारी दे दे, वो की मुआवजा हम लौटा दें। अरे हमारे नाना को कम से कम 50,000 को बगीचा है, तो यार जिनका होता है वो बैठो मम्मा हमारे पूछ लो से मुआवजा, खाली बगीचा है के लोगों को 50,000 को है, जिन 10,000 रुपये पट्टी जाए वो जमीन को, जो मुआवजा है भूसड़ी को, जैसे मुआवजा तो हमसे ले लेने वो, हमें दे दे जमीन। हमारे आमन गुधाड़ को जितनी बुदा हो, जितनी एक साल में फसल से हो जाते हैं,
जितनी वो माँ जखे के दाओ और 10-10 12-12 बोरे एक ही काम में फरात रहे। आज बेच वो 12 बोरे में कितने को होते हैं झाड़ को। बाहर से हम बूढ़ो ढोर खरीद के ले आओ तो तुम 5 साल जिया तू हम जो आज भी पानी पी के हमारा ढोर मर रहा है। हर साल 4 नंग हर साल मर रहा है। कोई खब के मर रहा हो, कोई पानी पी के मर रहा हो। गर्मी में वो उतार दे तो पानी खब न हमारा ढोर पानी नहीं पी सकते। बांध बनने के बाद लगभग 80% मवेशी जो है बांध के कारण मर गई। गांव की बहुत मवेशी मरी है ना। बहुत मर गए बाबू हमारे तो कितनी भैंसी एक बार खेर का भैंस करे पूछो। आदमी लोग भी कुछ हाह में खत्म हो गए, कम से कम नहीं तो 25-30% लोग जो है खत्म हो गए। कुछ जलवायु ठकर सोच लग गई है यार, वो भी शरीर आप बिगड़ रहा हो। अब हम तो खैर मर गए और हमारा लड़का बच्चा भी तो गए। जंगा डूबी जमीन डूबी डूबी माया हमारी बीरो कैसे जीबूरा भगवान के बांध बीरो कैसे जीबूरे कैसे जीबूरा भगवान के बांध बीरो कैसे जीबूरे थोड़ी थोड़ी दाव माजा बन गए चूतिया भैया बन गए हम तो चूतिया। हम लोग देखो हाथ कटा के में हो गए हैं हम भूतिया भैरो कैसे जीबू हाय सरगाव भर के बांध बेरो कैसे जीबू रे कैसे जीबू रे हाय भैया कैसे जीबू Children, planners, policymakers, all chant the national mantra. Dams are the temples of modern India. Since independence, India has built more than 3,500 large dams. 1/3 of the world's large dams are in India. In the last 50 years, dams have affected more than 30 million people in India, disrupting and destroying the livelihoods and cultures of numerous communities. Nearly 80% of the uprooted are tribal and Dalits, for whom the Indian Constitution provides special protection and rights. Since independence, 1 out of 3 tribals has been uprooted by one or the other development project. In the Narmada Valley, Bargi is only the beginning of uprootment. 700 kilometers downstream from Bargi stands the incomplete Sardar Sarovar Dam. It's the last of the 30 big dams before the river Narmada meets the sea. The Sardar Sarovar has been named after the eminent leader of India's independence movement, Sardar Vallabhbhai Patel. Estimated to cost 44,000 crore rupees, about $12 billion. If completed, it will be the second largest concrete gravity dam in the world. Mega projects which reinforce centralized control are equated with development and are propagated as a lifeline of modern India. Tired eyes, bleak future,
Even today, millions do not have the simple benefits of electricity. The Sardar Sarovar Narmada Dam pledges to bring light and hope to millions. Say yes to Narmada. The reservoir of the Sardar Sarovar Dam will submerge an area of 390 square kilometers, forcibly evicting over 200,000 people. 245 villages are officially slated for submergence by the reservoir alone. The final project includes canals, roads, colonies, a wildlife sanctuary, and tourist complexes, which will further threaten the lives of at least 1 million people. These 1 million people are not even mentioned as project affected in the package for rehabilitation prepared by the government. हमारे जमीन में पहला प्रथम के नेहरू की बात नेहरू उतरवा वाला होता अपने जवाहरलाल नेहरू आवाना छे आ બધા ગામડામાં અમને પૂછ્યું એટલે તમારે થોડકી અમને જમીન આપવાની બલોલ ઉતરવા ખાતર એવી રીતે અમારી કને એવી રીતે કીધું એટલે અમે પાક હતો તે અમે કાપી લીધો અને બલોલ જોગું ઉતરવા જોગું અમે જગ્યા આપી પહેલા પ્રથમની વાત એમ કરતા 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 પછી કોલોની બાંધી અહીં ઘર બાંધ્યું અને ઘર બાંધ્યું એમ કરતા કરતા ઘર બાંધનું માંડ્યું અને જે જમીન અમારો ઊભો પાક હતો અમે લઈ લીધો એ પાકને કઈ હાઈટ એકના હાઈટ રૂપિયા 80 રૂપિયા એ પ્રમાણે અમારે પાક ઊભો હતો એનો લઈ લીધો અને આપી દીધો અને અમારે એવા સરપંચ હોય તો નહીં 4-5 પહેલાના સરપંચ હજુ સરપંચ ઈવાને અલગ સર્કિટ ઉપર હે ને તા એમ કરતો ને એમ ખુરશીએ બેહાડ દે સાહેબ તા તેવતા જા તારી હું સરપંચ એટલે મને વળી હાલવાનો કે એમ ટેબલ ઉપર મેલ દે ભટભટીનું અમારા ધાન કા પીતર ને ધાન કો તપતા કે પેલો વળી સાહેબ સરપંચ એને બેહાડ દીધો એમ કરતો ભટભટીનું મૂકી આલે તાનો પેલો ખાઈ ઓ મેં સરપંચ એટલે મને વળી હાલવાનો કે સરકાર એટલે આ બીજોને વળી તાને સહયોગ કરો આપોને હાલવાનો હે ता फतरार ते सरपंच ने बोलावता है देनी हाव ते गर्जमती जलीन जमीन लीधेली ती મને બોલાવતા है देनी हाव एम वगारेली हमारे लोग गांडा भोड़िया શું કરે Nearly 40% of the victims of Sardar Sarovar Dam belong to the Bhil and Bhilala tribes. Labeled by the government as a least developed region, the hilly terrain inhabited by these tribal communities is relatively self-sufficient. खेती हमारी तो सारी बहुत है, इसमें ज्वार, इसमें बट्टी बोलते हैं बट्टी, मक्का उधर भी ज्वार है और ये थैले में तुअर भर के रखी दाल के लिए। तो ये क्या साल भर चल जाता है इससे? हाँ, फिर बेच भी देते हैं थोड़ा? हाँ, मैं तो बेचा तुअर है कम से कम मुझे 5,000 का बेची थी और उस साल और कम पका, ये तो और ज़्यादा पकता है, साल का है और ज़्यादा जैसा बारिश होता है जैसा अपने जैसा मेहनत की सवाल है। हम लोग तिल्ली भी पकवाते हैं और तिल्ली जो अपने जो 20 किलो 30 किलो जैसा अपने मिल में ले जा करके उसको मशीन में डाल करके तेल निकाल के ला देते हैं। अपने हाथ में तेल भी है और भैंस वगैरह है, गाय है तो अपने हाथ में दूध भी है। तो जो आदिवासी से चार दरणन काय तो खदानन काय आदिवासी से चाहिए सिरकार तरफ है देखाई तो आदिवासी मान यो कुन कोइलो जीवणन इनी धरती पर दातु दोगड़ू जार बीर हर जानवर से धरती पर आखत जीवनार से आखान जीवणन हक कसे को धरती टेनी वदनी से ने सिरकार गड़ीन ने धरती कानला देह माली जान ने धरती गड़ीन सिरकार मान हो एने वहां ये होलो थुड़ा से पीड़ान पीड़ी राजान राजवाड़ा जात रहे ते हमरा गांव
गांव छोड़ीन हम देहरी जागे नहीं जाए हम पा काय सारा निकाव लाकड़ा निकाव हर एक चीज ते आमुस पाक होतला हर एक वस्तु हम पाते आमु एने देहरा देह मा कहा जाने न होली हमरी इच्छा ते हमरो देह सुड़ीन देहरा देह हम जानिया निन देह हमरी जाने मोलते अंदवे या जरा राजा से पाणा भागोड़ा से पाणा भागोड़ा कडंडू गोरे रावते आया ते पाणा भागोड़ा कडंडू गोरे रावते राजा ने उताले मकोले ने उताले मकोले रनहाओले पाडणे आया ने उताले मकोले रनहाओले. Further upstream is Nimar, one of the most fertile lands in the world. Local farmers have nurtured these lands for generations, which have in turn given them prosperity and a sense of well-being. If the Sardar Sarovar is ever completed, a large part of this plains area will be drowned under several meters of water. सब उगती हमारे यहाँ दालों में प्रत्येक दाल पकाते हम. कपास हमारे अच्छा पकता है, मिर्ची अच्छी पकती है, बगीचे केला पकता है, पपीता पकता है. हमारे यहाँ की निमाड़ की जो जमीन नर्मदा किनारे की काश्तकार जो भी पकाना चाहे, काश्तकार चाहे वो चीज पक सकती है. खेती हमारी ऐसी नहीं है कि अमुक चीज नहीं पकेगी. काश्तकार की इच्छा हो वो चीज पका सकता है. होली का मूड धरण ऐसा है कि धरण मतलब डैम ऐसी बात है कि जो हमें केवल आंख भर पानी देने वाला है. बातें बहुत होने वाली है बिजली की, पानी की, लेकिन वो किसके खेत में जाएगी. और हमारे तो सगा सोहरे की भी, सगा संबंधों की भी, रिश्ते नातों की सरकार को कीमत नहीं. वो केवल कह रहा है उठो उठो. तभी हम सरकार की बोली समझ लेंगे और एकता का बांध ही हमारे काम में आएगा. कि हर गाँव में अपना लड़ाई से हर पुणे पुणे हर अपने देशों में हर गाँव में लड़ाई चल रही. कि नर्मदा पर है, कि छत्तीसगढ़ में है, कि बस्तर में है, कि रायगढ़ में है, कि बरगी है, कि सिंधरा है, कि अलीराजपुर है, कि गुजरात है, कि कहाँ भी अपने अधिकार जिन लड़ाई चालू से. कि आप राम मंदिर कर या मुसलमान हिंदू को ले रहा था और नर्मदा में हजारों मंदिर सरकार डुबाने बाजे. जब है राम मंदिर पर गत्ता मार जात्रा तीना मंदिर अपने नर्मदा किनारे हजार मंदिर भगवान डूबने बाद तीना काय सुनवाई नहीं करता. In projects like Sardar Sarovar, where billions are at stake, the vested interests of contractors, engineers, government officials, and the strong industrial political nexus form a powerful lobby. For them, big is beautiful. Supporting the dam, Mrs. Urmila Patel, wife of the former Chief Minister of Gujarat, Mr. Chiman. She is a member of Parliament and was a minister in the Central Cabinet during the last Congress government. बन के रहेगा. आप बोलेंगे सरदार सरोवर बन के रहेगा. जोर से बन के रहेगा. करके जरा जोर शोर से बोलो तो यहाँ और पार्लियामेंट हाउस तक ये बात पहुँचनी चाहिए और विदेशियों में जो विरोधी रहे वहाँ तक भी हमारा आवाज पहुँचना चाहिए. बन के रहेगा.
है और इसका कोई मूल्य हम आंक ही नहीं सकते हैं। वो अमूल्य ऐसी योजना है क्योंकि ये हमारी जीवन डोरी है। हम जीना चाहते हैं और हर एक आदमी को जीने का अधिकार है। जैसे तिलक जी ने बोला था कि फ्रीडम इज अवर बर्थ राइट, वैसे पानी लेना भी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और गुजरात के लोगों को पीने का पानी लेने का अधिकार है। हमारी जिंदगी को वैसे वोट देने का अधिकार कोई भी पर्यावरणवादियों को हो ही नहीं सकता। दुनिया की कोई भी ताकत हमको पानी पीने से रोक नहीं सकती। हम पानी लेंगे, पानी पिएंगे और गुजरात का गौरव बढ़ाएंगे, ये हमारी ताकत। Mr. Digvijay Singh, the present Chief Minister of Madhya Pradesh, the state that will suffer the most and will benefit the least. Mr. Singh has taken a responsive stand and asked for the reduction in the height of the Sardar Sarovar Dam. Yet, Madhya Pradesh is the state where 29 out of the 30 large dams in the Narmada Valley are located. Mega projects are essential if power generation has to be, it is one of the cleanest form of power generation if you see. Consumption of power is also a criteria for development. Ultimately the rural people who benefit from these schemes. And that includes the poorest of the poor. Does it? Of course it does. The resettlement and rehabilitation package offered by the government to the victims of Sardar Sarovar Dam is said to be the best in the world. The living experiences of the oustees who accepted the package tell a different story. તમારો મકાન ડૂબી જાય તમે અહીંથી ખસી જાઓ, અમે ખસી આવ્યા. અહીંયા આવ્યા પછી અમને કોઈ જાતની સવલત ના મળે. અહીંયા અમારે આવીને શું કરવાનું, ઢોરોને કચરું ના મળે, ઢોરોને પાણી પીવાની તકલીફ. અહીંયા તમે જુઓ તમારા રૂબરૂ શું છે, કઈ છે તમને દેખાય કઈ? તમને બહુ આપ્યું છે, તમને તો મકાનોના પાયાના પૈસા આપે છે, તમને મકાનનું વળતર આપે, તમને ઘરનો પ્લોટ આપે છે, તમને વીજળી લાઇટ આપે, તમને રહેવા માટે પ્લોટ આપે છે, તમને રહેવા માટે લાઇટનું ઉજળી કરી આપીશું, રહેવા માટે ગૌસરા આપીશું, તમને પાણી સુકે અમને ખૂબ આનંદ મળશે, સુખ મળશે. સાહેબ આવે તો મરી જાવ એવું લાગે. તમને ખબર હે તમારા જેવા કેટલાક આવે જતા છોકરાએ ચાલો શું તકલીફ છે શું છે એમ કહે. પછી આ ઠંબકાના કા હેર પંપ ઢોળાને હિંદોડી 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 પણ લોકડાઉન में कपड़ा धोए ना ना धोए ना અહીંયા અમારે કઈ છોકરા જાડા પડે કઈ કરે તો અમારે કઈ ધોવાનું. એ સાહેબ છે એમનું મકાન તોડીને પછી બાજુ ઉપર જંગલમાં ફેંકી દે તો એમને કેવું લાગે એવી રીતે અમને બી લાગે છે. અમારું કઈ નાનાથી આવું અમારું ભૂમિ હતી ત્યાંથી તોડીને અમે નદલતા નાખી દીધા.
પછી લાગે કે નથી લાગતું તમે વિચાર કરી જવો એક વખતે હે તમારું મકાન તોડીને તમને પેલો અબ્દુલતા ડુંગરિયામાં કઈ જંગલમાં તમે નાખે તો તમે રોજી આવે કે ના આવે એવી રીતે તમને નથી લાગતું હે आप सब जानते हैं कि ये आदिवासी लोग का फैमिली तो बड़ा फैमिली होता है जो कल मजदूरी करता था जमीन का मालूम नहीं था किसी को 20 एकड़ मिलती है किसी को 15 एकड़ मिलती है किसी को 25 एकड़ जमीन मिलती है वो एक छोटा सा अच्छा खेलूत बन जाता है उसका जीवन थोड़ा एक मिडिल क्लास फैमिली जैसा बन जाता है तो ये महत्वपूर्ण की बात है कि इतनी अच्छी पॉलिसी होने के बजाय भी कहीं काम होता ही नहीं है विस्थापितों को पुनर्वसवाट ये सरकार करती भी नहीं है जो बात कहती है वो गलत बात कहती है ऐसा आरोप लगाते कब वो लोग है कि जो आदिवासी को पुनर्वसवाट दे रहे हैं विस्थापितों को पुनर्वसवाट दे रहे हैं हमारा जो गुजरात का कल्चर का मेन स्ट्रीम है मेन स्ट्रीम में लाने के प्रोसेस में हम काम कर रहे हैं और किसी को काम नहीं करना The resettlement site at Malu village in Gujarat. The Austies of Vadgam were relocated here. 3 years after living at Malu resettlement site, they uprooted the site to return to their old village of Vadgam, despite being aware that their houses and livelihoods will be submerged. જમીન જોઈ 3 વર્ષ થઈ ખેતી કરી આવ્યા અને મને તકલીફ હતી એટલે પછી અમે આવતા રહ્યા પાછા શું તકલીફ હતી ત્યાં એમ કે ઝાડમાં બહુ ખેતી જમીન में અડધી જમીન હારી ને અડધી જમીન બધી કજરવાળી એટલે પછી આવતા રહ્યા અને મને પાણીની બહુ તકલીફ હતી લાકડોની તકલીફ પાણીની તકલીફ અમને ઘાસ આરાની તકલીફ બધાની તકલીફ અને 3 વર્ષથી મારા જે પ્લોટ હતો એમાં એક મુઠ્ઠીભર મને અનાજ નથી મળ્યું પટેલ લોકોની જમીન એ જમીન મને આપેલી પટેલ શું કહે કે ભાઈ સરકારે મને પૈસા આપ્યા નથી તો આ જમીનમાંથી જે કંઈ પાક થાય એ તને નહીં મળે હું લઈ જવાનું તો અમે એક મનમાં વિચાર્યું કે આપણે સહારો કોનો લેવો પોલીસ પણ આવું આપણને કરે સરકાર પણ આપણને આવું કરે આપણે દેશના માટે આપણે ભોગ આપી દીધો તો આપણે જેવું કહે તો અમે એક નિર્ણય લીધો કે આપણે તો મિલકત છે જ હજી ડૂબી નથી ભલે અહીંયા મરવું તેની કરતાં ત્યાં મરવું એ હાસું એના કારણે અમે 24 જણ એક નિર્ણય લઈને અમે પેપરમાં જાહેરાત કરીને અમે પાછા આવેલા હજી 24 જણા જતા રહ્યા છે હમણાં તમે ના ગયા અહીંયાથી આમ ગયેલા ને ત્યાંથી 24 ફેમિલી જતા રહ્યા અહીં જમીન એમના ખાતે થઈ જાય સરકારે બધી સુવિધા હતી છતાં પણ એ વાયદ કરી મેઘા પાટકરની જોડે રાતોરાત વાલીને જતા રહ્યા કઈ નહીં બસ એમને એક જાતનું એ કે બસ બંધ બંધાવો ના જોઈએ એમ પૈસા પેલો આપે છે ખાઈ મજા કરે છે ये कंपनी जो है मेगा पाटकर कंपनी जंगली से जंगल में જ રહેતા બરાબર और આ એરિયાની અંદર ને એરિયાની અંદર ફરક તો ખરો આખું વાતાવરણ બદલાઈ જાય એટલે અહીંયા પછી તો ખાસા એ લોકો સુધરી ગયા અરે ભાઈ તમે ધાબા મારી દીધો કેવી રીતે એક તો પહેલું એમના ડ્રેસ પર જ સુધર્યા એ લોકો દેશી ભાષામાં લંગોટી બાંધી રહેલા કેવી રીતના આપણા અંદર કેવી સાડી પહેરે છે એ લોકો સાડી એમ ટોટલ પહેરે જ ના આખી વીટી છે કે ગમે તે એમનો પેલો જંગલી ડ્રેસ હજુ છે હજુ તમારે જો એમનો અખતરો કરવો હોય ને તો હજુ બી 4-5 ફેમિલી એવા છે કે અત્યારે બી એ ડ્રેસ પર જ મળશે હમણાં એ લોકોને હજુ અસર થઈ નથી ઘણા બધા 90% બધા मैं डॉक्टर राजेश सिंह राठौड़ हूँ मैं डेंटिस्ट हूँ बेसिकली और बड़ौदा का मेयर भी रह चुका हूँ मैं राजपूत हूँ ये मेरा पाटकर जो आंदोलन चला रही है उसके सामने हम प्रो डैम के लिए आंदोलन चला रहे हैं हमारा एड्स कैंसर और नर्मदा बचाओ 3 का प्रोग्राम है गुजरात के लिए लेकिन खास करके हम नर्मदा के लिए काम कर रहे हैं अभी और नर्मदा डैम बनना चाहिए वैसा हम गुजरात की प्रजा की तरफ से बोल रहे हैं मैं भी खेती मेरे फादर भी खेती करते हैं हमारी ज़मीन अबाउट 75 एकड़ जितनी है मैं इनकम टैक्स में ग्रॉस इनकम 5 से 6 लाख रुपया दिखाता हूँ हर साल और उसके अलावा खेती का इनकम है हमारा 2-3 लाख का तो वी आर वेल टू डू देयर इज़ नो प्रॉब्लम लेकिन फसल एक ही होती है हमारे यहाँ और 3 फसल हो जाएगी नर्मदा आने के बाद तो फिर उसका डबल पैसा हो जाएगा पानी की वजह से 3 फसल ली जाएगी
बिजली होगी, बिजली सस्ती हो जाएगी, इसकी वजह से इंडस्ट्रीज बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। आज हमारे यहाँ देखो तो बढ़ेगी, सोमवार को गुरुवार को स्टैगरिंग होता है लाइट का, वो स्टैगरिंग बंद हो जाएगा। आज हफ्ते में 2 बार लाइट बंद रहे तो इंडस्ट्रीज का कितना लॉस है। रोड पर बोल लगा दे लाखों जीवादोरी नहीं के लाखों मरण दौड़ी से आ योजना माटे लाभ कोनो से ये मोटा मोटा अधिकारी मंत्री हो, कोई कलेक्टर हो, कोई एससी हो, कोई गमे ए हो एमना माटे लाभ से हमारा माटे लाभ कशो ही नहीं के भोग में आपी दीदो ने लाभ ले से। Mr. Harivallabh Parikh proclaims himself as a devout Gandhian. His organization encourages the oustees to accept the resettlement package. We, some young Gandhians, lived with Gandhi. And when Vinoba Bhave came here in 1958, he told that Harivallabh started Bhutan before I did. In the 1970s, Mr. Parikh protested against a large dam in Gujarat. Using his political connections, he was successful in getting it cancelled. Interestingly, his own ashram was in the submergence area of the dam. I came to know that you opposed the Lalpur Dam. That was the first dam in India that after spending about 1 crore rupees, government has to change the design of it. He is one of the most ardent supporters of the Sardar Sarovar project. He calls Sardar Sarovar Dam. I have accepted this Narmada Dam as an unavoidable evil. Anivarya, unist. There is no alternative water resources for the rest of the Gujarat if we will not utilize the water of the Narmada Dam. In 1994, he was honored with the Man of the Year title by The Week, a leading Indian news weekly. In 1996, he was arrested and implicated in the molestation and multiple rape of a young tribal woman. कंदर्प व्यास, बड़ौदा इंटक का जनरल सेक्रेटरी हूँ, पंचमहाल इंटक का जनरल सेक्रेटरी हूँ, बड़ौदा रिक्शा चालक कांग्रेस इंटक का जनरल सेक्रेटरी हूँ, मिल मजदूर कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी हूँ। फादर एंड मदर बोथ आर नेशनल फ्रीडम फाइटर, इसलिए देश की सेवा, प्रजा की सेवा मेरे खूनों में बचपन से ही है। जिंदगी भर वो लोग देश के लिए लड़े हैं और बाकी का काम मैं कर रहा हूँ। वो तो कहते हैं हमको आजाद रहे हो तो। Victims of the brutal violence during the 1984 massacre of Sikhs, which followed the assassination of Mrs. Indira Gandhi, respond to the promises made by the supporters of Sardar Sarovar Dam. ये हमारी एक झुग्गी है, हमारे लिए भी यही महल है। अगर ये हमारी झुग्गी बर्बाद हो गई, हमारे को रहने की जगह ना हुई, कमा कर खाने की जगह नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? तो आपको लड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए। वो उस लड़ाई को लड़ रहे हैं और आप उनके खिलाफ हैं। नहीं, हम खिलाफ नहीं है, हम तो डैम बनना चाहिए वो बोलते हैं। हम उनके खिलाफ नहीं है। डैम तो जब ही बने जब उनके घर बार उठा दोगे, जब ही डैम बनेगा ना। आपका फीलिंग में समझ सकता हूँ, लेकिन जो गुजरात सरकार ने क्या बायदरी दी है, गुजरात की सरकार उनको क्या क्या देने वाली है वो आपको मालूम है? नहीं मालूम है। वो लोग कह रहे हैं, वो आपको मैं बताऊँ तो आप गुजरात सरकार क्या दे रही है? हो जाओगे कि इतना सारा दे रही है। अरे मैं तो सोचता हूँ मैं खेडूत होता और मेरी खुद की जमीन डूबती तो मुझे काफी तरक्की मिलती और काफी पैसा मिलता। 84 से यहाँ उजड़ कर गए हैं, अपनी जायदादें जो लाखों रुपए की जायदादें हजारों में बेच के खत्म करके चले गए, आगे काम नहीं चला, वहाँ से फिर धक्के खाते हुए यहाँ वापस आए हैं। कोई अभी तक सुनाई नहीं है, 10 महीने हो गए हमको यहाँ बैठे हुए। इसलिए हमें पता है जो अपना घर छोड़कर एक दफा बर्बाद होता है उसको समझ लो कि वो पाँव उसके लगने मुश्किल हो जाते हैं। 40 साल जब पाकिस्तान से हम लोग आए थे यहाँ पर, अब आकर थोड़ा अपने पाँव पर खड़े हुए थे। ये दोबारा कांग्रेस गवर्नमेंट ने हमको 83 के दंगे में फिर बर्बाद करके यहाँ से धक्का देकर बाहर निकाला। आज हम फिर धक्के खाते हुए पंजाब पूरा रोल काटते हुए यहाँ पर फिर वापस आ पहुंचे हैं। हम बाल बच्चे गाँव हमको नहीं चाहते, हम नहीं चाहते अच्छी कोठी हो, हम नहीं चाहते अच्छा रहना बहना हो हमारा। वो तो कोई भी सोचेगा, हम सोचेंगे ना। तो इसलिए हम कहते हैं जब हम यहाँ से बर्बाद होकर अभी तक कामयाब नहीं हो सके और ये गरीब आदमी जो किसी की भाषा नहीं समझ सकते, ये कामयाब कैसे होंगे?
जबरदस्ती उठरता पे ये भी माँ उठना ना गाँव लोग करदा दम की बताता सरपंच अब भाई माँ है होता है माँ जबरदस्ती उठा रहा हूँ कतरे पे अमा उठना ना माइटा के पे उठना है ना हमें सरकार डैम बांधी सरकार जाने हमारी जमीन छोड़ी जवाना नहीं अगर जन्मभूमि ऊपर ज रहवाना अरे डैम में हिसाब जे कई करवाना तो सरकार करे हमारा प्राण जैसे बनाए ते भूमि हमें छोड़वाना नहीं ये हमें नक्की करेंगे The battle against the Sardar Sarovar Dam resonates in the entire Narmada Valley. The lessons from the ongoing struggle echo 700 kilometers upstream all the way to Bargi, the first dam on the Narmada. Those uprooted by the Bargi Dam also rise in protest. 19th of September 1992, a boat rally. From Padmi Ghat, protesters row 70 kilometers inside the reservoir over 2 days and reach the Bargi Dam. As the first ever boat rally in protest against the Bargi Dam, it marks a historic moment in the struggle for justice. ये हुकूमत हो के चाहे वो पंडित हो पटेल हो आदिवासी हो जीवन हो कोई भी हो डूब गांव का होना चाहिए लड़ाई हमारी एक है नर्मदा घाटी की उसमें जो भी होगा इसके नीचे वाले यहाँ तो लड़ ही रहे हैं नीचे वाले के लोगों को जरूरत पड़ेगा सरदार सरोवर के लोगों को पड़ेगा पूरे यहाँ के लोग लड़ उठ के जाएंगे हम तो डूबे हैं आगे को नहीं डूबने देंगे ये भी ताकत दिखानी पड़ेगी चलो तो घाटी की बात है थोड़े प्रतिनिधि जो आप लोग हैं अभी ये लोग अगर कहीं बैठकर चर्चा करके फिर तारीख तय करते हैं और फिर वो मीटिंग में जाहिर करते हैं तारीख तय करने के लिए काफी सोचना बड़ी वाली जो किस्ती है उसमें जो प्रमुख लोग हैं वो आए चंगी भाई पटेल साहब सब कुछ मुन्ना भाई जितने भी प्रमुख लोग हैं गांव के बैठे और चर्चा करें और अभी वहां तक उतरते समय हो जाएगा अभी बस समय है तो अब बस मीटिंग को खत्म करके आगे बढ़ते हैं जलाशय है मछली पर हमारा अधिकार जो सरकार छीन रही है हर माल सरकारी जंगल सरकारी जमीन सरकारी जलाशय सरकारी ये होते कौन है सरकारी करने वाले हमारे गांव में हमारा राज होगा हमारा जल जंगल और जमीन ये जीवन के साधन है इनको हम सरकारी नहीं होने देंगे जिंदगी छीनी है तो जिंदगी देना होगा इज्जत के साथ हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि अगर इस बार तुमने कुछ नहीं किया तो अगले साल देख लेना होता है क्या 1993, village Bijasen. It is summer. The waters in the reservoir recede. Authorities neglect the year-long protest. The
people decide to return to their old villages and reclaim their original land. They resolve that they will not allow the reservoir to be filled. पिछले साल इस चीज का संकल्प लिया था कि यदि सरकार हमारी नहीं सुनेगा तो पुरानी बस्ती में चले जाएंगे। तो जब नहीं सुनी सरकार ने तो हम आ गए अपनी पुरानी बस्ती। अब उसका जैसा करना हो, जल से डुबाना हो, भूतन मारना हो तो करो। This site, where the people are sitting on Satyagraha, remains under 4 to 6 meters of water for most of the year. जबलपुर के पास नर्मदा में बने बरगी बांध के विस्थापितों ने बगावत का परचम बुलंद कर दिया है। पुनर्वास और दूसरी सुविधाओं के सरकारी वायदे छोटे साबित होने के बाद मध्य प्रदेश के मंडला, सिवनी और जबलपुर की करीब 162 गाँव के लोगों ने बरगी बांध के जोग क्षेत्र में आने वाले अपनी जमीनों पर दोबारा कब्जा कर लिया है और नर्मदा का जल उठाकर संकल्प लिया है कि जहाँ बसे थे वहीं बसेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। 10 जून से इस सिलसिले में बीजासन में बेमियादी सत्याग्रह शुरू किया जाएगा। इस आंदोलन का नारा है मनी वैली और बीजासन की लड़ाई एक कदम इज्जत से जीने के अपने संवैधानिक और बुनियादी मानवीय अधिकार की स्थापना के लिए है और सम्मानपूर्ण समाधान होने तक हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। हम अपने अधिकार की रक्षा के लिए हंसी खुशी बलिदान करेंगे। इस संघर्ष में नर्मदा घाटी के दूसरे सिरे पर मनी वैली के लोक संकल्प में अंतिम समय तक साथ देंगे। सब आदमी नाश कर देंगे। परदेश बिठा दीजिए, हमारे घर दूर छोटा गए, हमें खा देखे नहीं, हमके पी देखे नहीं, लल्हा रहे हैं, बटा रहे हैं, दुख तुम्हारा हो रहा हो। तो हमारी मांग यही है कि भाई हमारा जमीन जगह हमके दे तो हम कुछ अन्न पानी से मिलेंगे। जैसे हमारे कहना प्रार्थना तुम्हारा भी जमीन डूबा है? ये पूरा बिल्कुल। इतना गहना नहीं है। हाँ, इतना गहना वो नहीं बोल खरीद था। मैं तो बैठक में आए थे। किसके लिए? अब सब सत्याग्रह की बैठक में आए थे और यहाँ आए हैं। तो सत्याग्रह से क्या होगा? अब दो कट्ठू हो जाए और दो कट्ठू मिल जाए। और रात में बेटा ने मूंग खेलल हाँ, ने वर्दा खेलल हाँ, ने राहर खेलल हाँ, गठे थे अपनी खुदवा है, धान है, सब चीज किसानी और अब है तो उन्हारी बोन के नहीं मिले तो सब चीज कहाँ से मिले? क्योंकि सरकार ने इतनी गद्दारी करी कि हम मुसलमान हैं, हमके तेज नसीब नहीं हो रही है। तो आज शासन ने ऐसा इंसानन के मजबूर किया है। ये जमीन हमके साल भरी का खर्च देती बहन जी, कहीं नहीं जाती थी, इसी से कमाती थी, इसी से खाती थी। Satyagraha at Bijasen continues for 55 days. The government comes to negotiate. Bureaucrats and politicians call meetings, formulate plans, appoint committees after committees. Ultimately, they are forced to give in to one of the demands. Grudgingly, they grant the fishing rights. Only 3,000 people get back a part of their livelihood. The people know this victory is but a small step.
A flood of bureaucratic activity on papers and files threatens to drown the struggle. Thousands of families still remain without any agricultural land or other sources of subsistence. हम क्या है कि हम किसान आदमी हैं, हम पैसे का धंधा करना हमको मालूम है नहीं, हमें आता नहीं है। हमको जमीन का धंधा आता है कि जमीन से क्या पैदा होता है, जमीन से क्या लाभ है, उसका मतलब किसान ही जानेगा, शहरी नहीं जानेगा। हमको अभी लाख रुपए भी धर दे तो हम 2 दिन के अंदर मिटा के रख देंगे, और हमको जमीन दे दूंगा 4-5 एकड़ तो हमारी जिंदगी सुखर जिंदगी जो का त्यों जैसा था वैसा हो जाएगा। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, एक अनपढ़ के हिसाब से कि जितना भी है जो विकास के नाम पर जो विनाश हो रहा है, इसमें दो ही समाज भागीदारी है। एक तो सक्षम लोग हैं और एक शिक्षित लोग हैं। शिक्षित लोग हैं समझते हैं कि इससे कितना विकास है और कितना विनाश है, और उनके बोलने से कुछ हो भी सकता है, पर वो बस मौन बैठे रहे। विनाश होता जा रहा है ना, वो चुपचाप देखा करते हैं। After 8 years of its completion, the Bargi Dam has submerged more land than it irrigates. At present, only 5% of the estimated area is irrigated by the dam waters. At this pace of construction, the canals will take 100 years to complete. It is 1996. In spite of many promises and assurances, the government has failed to provide sources of livelihood to the uprooted families. The people decide to reclaim some land in the depleted summer reservoir. They ask the government not to fill the waters up to the full reservoir level, so they could take at least one crop. The authorities respond by filling the reservoir once again and flooding the lands. The people gather at Bijasen once more. The village of Bijasen becomes the symbol of withstanding the government's assault. As the waters rise to their chest, the people stand in place for more than 36 hours. This time the authorities organize a brutal lathi charge. They arrest over 200 people. Those who are left remain standing in chest-high waters. Protest mail pours in from across the nation and outside. The authorities make fresh assurances and release those arrested. और सी दुनिया में जाहिर हो रही है कि जा तकलीफ में ये सब दिखा रहे हैं, दुनिया तो देख रही है कि ऐसी गत में अपनी बखान हो रही है शहरों कमैयन में दुनिया में कि भाई ऐसी तकलीफ में है। दूसरे बांध भी बंधन बारे बेबी अपनी बात सुन कर बेबी डरे कि जा तकलीफ में है कि कभी टेप कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। जब देखे हैं अपनी परिस्थिति राजा के दोष दब जा रहा हूँ राजधानी का। तो जैसा ये बांध बन रहा है वैसे तो और भी बांध बन रहे हैं नर्मदा के ऊपर में। दिसंबर में सहयोग का जो कोई बांधन दे हैं सो तो आप क्या बोलेंगे वहाँ के लोगों से? अगर अरे हम तो यही कहेंगे दद्दा एमएलए बांधन दो, तो अगर जी में है तो हमारी गत हो गई, तुम्हारी काय हो रही। अगर कछु दिन दुनिया देखने है तो बांधने बनाऊं दो, और नहीं देखने है तो चले जाओ फिर, जैसे हम जा रहे हैं सो हम तब गए।